اتر پردیش محکمہ تعلیمات کا ایک اور کارنامہ 9 مہینوں کی تاخیر سے شائع اردو کی درسی کتاب میں غلطیوں کا پلندہ اور بیش بہا خدمات کے لیے 100ویں سالگرہ پر یاد کی گئی پرنسس در شہبار، ان کے قائم کردہ اسپتال میں انہیں پیش کیا گیا خراج عقیدت۔ اور سب سے پہلے بڑی خبر، ملک بھر میں آج یوم جمہوریہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ امر جوان جیوتی پر وزیر اعظم منموہن سنگھ نے شہیدوں کو گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس بار یوم جمہوریہ کی تقریب میں جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے مہمان خصوصی ہیں۔ یوم جمہوریہ تقریب کے پیش نظر دہلی میں سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیے گئے۔ پریڈ کی روٹ وجے چوک سے لے کر لال قلعہ تک کی چوکسی پر 35,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ پریڈ روٹ کے اطراف 160 CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ قومی راجدھانی دہلی کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی یوم جمہوریہ تقاریب کے پیش نظر سخت سیکیورٹی بندوبست کیے گئے تھے۔ ملک بھر میں آج جمہوریت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ امر جوان جیوتی پر وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے شہیدوں کو گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس بار یوم جمہوریہ کی تقریب میں جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے مہمان خصوصی ہیں۔ یوم جمہوریہ تقریب کے پیش نظر دہلی میں سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیے گئے ہیں۔ پریڈ کے روٹ وجے چوک سے لے کر لال قلعہ تک کی چوکسی پر 35,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ پریڈ روٹ کے اطراف 160 CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ قومی راجدھانی دہلی کے ساتھ ساتھ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی یوم جمہوریہ تقاریب کے پیش نظر سخت سیکیورٹی بندوبست کیے گئے تھے۔ لڑاکو بیڑے میں واپتی بائی پلین سے لے کر سکھوئی 30 MKI کو دکھایا گیا ہے اور پریوہن بیڑے کے ڈکوٹا اب تک مکھیہ یدھک ٹینک ارجن 2 میں 70 سے زیادہ بدلاؤ کیے گئے ہیں۔ اسے سودیش میں ہی ڈیزائن اور وکست کیا گیا ہے۔ As is only appropriate, the last tableau in the DRDO column shows us the future of the battlefield. In land, remotely operated vehicle, confined space remotely operated vehicle, and gun-mounted remotely operated vehicle. Soldier. Here come those who gave their youth for the service of the nation, our ex-servicemen. Rays of sunshine on Rajpath. The BSF. یوم جمہوریہ کے موقع پر کانپور کے معروف دینی ادارے جامعہ محمودیہ میں جشن جمہوریت کا انعقاد کیا گیا۔ جامعہ کی مسجد میں منعقد ہونے والے اس جلسے میں طلباء نے حب الوطنی اور آزادی کے موضوع پر اپنی تقاریر اور نظمیں پیش کی۔ اس موقع پر جامعہ محمودیہ کے طلباء نے یوم جمہوریہ کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ بنگلورو کے اقلیتی تعلیمی اداروں میں جوش و خروش کے ساتھ 65واں یوم جمہوریہ منایا گیا۔ شہر کی سٹی جامع مسجد کے روبرو جامع العلوم کے نائب صدر عطار سید مرتضی حسین نے ترنگا لہرایا۔ جامع العلوم کے علاوہ الامین کالج، عباس خان کالج، حسنات کالج اور بنگلورو کے سرکاری اردو اسکولوں میں بھی یوم جمہوریہ کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ میرٹھ میں جشن جمہوریہ کے موقع پر پربھات پھیری کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف اسکولوں اور مدارس کے طلباء نے جلوس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ وکلانگ ایکتا سدبھاونا سمیتی نے بھی جلوس نکالا۔ 22 نمبر پر یوم جمہوریہ کے موقع پر راجستھان کے گلابی شہر جے پور کے SMS میدان میں قومی پرچم لہرایا گیا۔ ریاستی گورنر مارگریٹ الوا کے ہاتھوں پرچم کشائی ہوئی۔ اس تقریب کے علاوہ مختلف اسکولوں اور مدارس میں بھی رسم پرچم کشائی ادا کی گئی۔ بھوپال میں بھی جہاں سرکاری طور پر پرچم کشائی کی گئی، وہیں اقلیتی اداروں، وقف بورڈ اور حج کمیٹی کے دفاتر میں بھی جشن جمہوریہ کا انعقاد کیا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر کانپور میں جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس موقع پر دینی مدارس میں زیر تعلیم مختلف اداروں کے طلباء نے شرکت کی اور قومی ترانہ گایا۔ پرچم کشائی جمعیت علماء ہند کے ریاستی نائب صدر مولانا متین الحق اسامہ نے کی۔ ہمارا ملک جو بہت قربانیوں سے آزاد ہوا اور ہمارے بزرگوں نے اس کا دستور ایسا بنایا کہ سارے ہندوستانیوں کو یکساں حقوق دیے۔ علماء اکرام نے زبردست قربانیاں دی ملک کو آزاد کرانے میں،
یوم جمہوریہ کا پیغام یہ کہ انصاف قائم ہو، امن قائم ہو، سارے ہندوستانی محسوس کریں کہ ہم آزاد فضا میں جی رہے ہیں۔ ملک کے 65ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح ناندیڑ میں ریاستی وزیر ڈی پی ساونت کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی، ساتھ ہی لوگوں کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کی گئی۔ اس موقع پر پرچم کشائی کے ساتھ ہی پولیس دل کی جانب سے روایتی پریڈ کا اہتمام کیا گیا۔ رانچی کے مورابادی میدان میں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ پرچم کشائی کا فریضہ ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ادا کی۔ ہیمنت سورین نے جہاں اپنی حکومت کی دیگر حصولیابیوں اور مسائل کا ذکر کیا، وہیں اردو کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اقلیتوں کی تعلیمی ترقی کے لیے حکومت عملی اقدامات کر رہی ہے۔ پرستوتی آپ اس جھانکی میں دیکھ رہے ہیں، نلکوپ کی مرمتی کی अल्पसंख्यकों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों एवं मदरसाओं को अनुदान दिया गया है। मदरसाओं की प्रस्वीकृति में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर कर अनुदान का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति कार्रवाई प्रारंभ की गई। मालेगांव में भी यौम जमहूरिया के मौके पर समाजी तंजीम तिरंगा परिवार की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। नई नस्ल में हुब्बुल वतनी को फरोग देने की गरज से मुनक्किदा इस रैली में कसीर तादाद में तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ये रैली पुलिस हेडक्वार्टर पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के आगाज के मौके पर तिरंगा परिवार की जानिब से हुब्बुल वतनी के गीतों पर मुश्तमिल कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी यौम जमहूरिया तकरीब जोशो खरोश के साथ मुनक्किद की गई। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर एनसीसी सीनियर कैडेट्स के तलबा और तालिबात ने मार्च पास्ट किया। वाइस चांसलर और उनकी अहलिया ने यूनिवर्सिटी हेल्थ सर्विस में दाखिल मरीज तलबा को फल तकसीम किए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दारुल-हुकूमत दिल्ली में निकाले गए यौम जमहूरिया परेड में रियासत कर्नाटक ने अपनी नुमाइंदगी टीपू सुल्तान शहीद की झांकी के जरिए दर्ज की। रियासती हुकूमत के इस इक़दाम पर रियासत के मुसलमान और टीपू सुल्तान के शहदाइयों ने खुशी का इजहार किया है। ये पहला मौका है कि नई दिल्ली में मुनक्किदा 65वें यौम जमहूरिया के परेड में मुजाहिद आजादी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानियों को झांकी के जरिए खिराज पेश किया गया। मुल्क भर में टीपू सुल्तान के शहदाइयों के लिए ये लम्हा फख्र और खुशी का बायस रहा। रियासत के वजीर इत्तलात आम्मा आर रोशन बेग ने कहा कि शेर मैसूर टीपू सुल्तान के कारनामों को नुमाया करने की कोशिशों का ये आगाज है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये झांकी ही सही हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम में, कि उनका जो कंट्रीब्यूशन स्टेट के लिए रहा वो उस झांकी में हम दिखाना चाहते हैं। वो छोटी बात नहीं है। रिपब्लिक डे में जब हर रियासत के हिंदुस्तान के उसके एक नुमाइंदगी एक झांकी होती है, तो उस झांकी में शहीद का रहना। मिल्ली इदारों के जिम्मेदारों का कहना है कि देर से ही सही लेकिन कर्नाटक हुकूमत ने काबिल तहसीन इकदाम किया है। साथ ही हुकूमत से ये मुतालबा भी किया गया कि वो मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में पेश किए जाने वाले दीगर मुतालबात को भी पूरा करे। आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद जो है आज़ादी के सबसे पहले मुजाहिद थे और सबसे पहले शहीद थे जो उन्होंने मुल्क के लिए अपनी शहादत पेश की। तो ये बहुत ही बिफिटिंग था और बहुत ही सही था फैसला कि उनकी झांकी ये निकाली जाए और इनकी याद को ताज़ा किया जाए। इंशाअल्लाह हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि उन्होंने जिस मकसद को लेकर हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए लड़ा था और फिर जो तालीम के सिलसिले में उन्होंने किया था उसके मुताबिक इक़दामात हों और हुकूमत उनकी तमाम चीज़ों को यहाँ ख़ास तौर पर कर्नाटक के अंदर हो और सारे हिंदुस्तान के अंदर हो। अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर की चौथी जंग में शहीद होने वाले हजरत टीपू सुल्तान का शुमार हिंदुस्तानी तारीख की अजीम शख्सियात में होता है। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। खास बात का सिलसिला एक ब्रेक के बाद। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर।
महसूस करें खबरों की धड़कन। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश के DGP रिजवान अहमद ने मदरसों के ताल्लुक से फैली गलत फहमियों को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया। लखनऊ में यौम जमहूरिया के मौके पर एक मदरसे के प्रोग्राम में शिरकत के दौरान उन्होंने तलकीन की कि मदरसों से फारिग तलबा की शनाख्त अच्छे इंसान की होनी चाहिए। इस मौके पर साबिक IPS अफसर मंजूर अहमद को तालीमी खिदमात और वसीम हैदर को समाजी खिदमात के लिए एजाज से नवाजा गया। मदरसे देखिए ऐसे गलत फहमियाँ किसी के लिए भी हो सकती हैं और मैं तो जनरली बात करता हूं कि आपस में जो अविश्वास की भावना है, जो शंकाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो सब खत्म होनी चाहिए और प्यार और मोहब्बत, आपसी हमाहंगी और जो है ये एकजहती, इसमें मैं विशेष रूप से जोर देता हूं। इस तरह माइनॉरिटी को अपने कल्चर की हिफाजत। यौम जमहूरिया के मौके पर गुलाबी शहर जयपुर के करबला मैदान में एक जलसा हुआ जिसमें हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से 25 जोड़ों का इज्तिमाई निकाह करवाया गया। इसके अलावा राजस्थान हज ट्रेनर्स जयपुर की जानिब से खून का अतिया कैंप इनकाद हुआ। पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब करने पर कादर अली बेग थिएटर के डायरेक्टर मोहम्मद अली बेग ने मसरत का इजहार किया है। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि उन्होंने अपने वालिद कादर अली बेग से तहरीक पाकर ड्रामे की शोबे का इंतखाब किया था और कहा कि उन्होंने अपने वालिद के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हैदराबाद के आर्ट थिएटर में कई ड्रामे किए। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि उन्होंने कभी भी मुल्क के बावकार अवार्ड पाने के बारे में सोचा नहीं था। अगर आपसे कोई ये कहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उर्दू के बहुत बड़े अदीब थे या ये कहे कि मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की वफात 1946 में हो गई थी, तो शायद आप इसको दिमागी खलल तस्वुर करेंगे।
लेकिन ये कारनामा उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली उर्दू की दरसी किताबों ने कर दिखाया है। दर्जे अव्वल से 8वीं जमात तक इन दरसी किताबों में ऐसी गलतियां हैं जिनको देखकर उर्दू दां तबका सख्त नाराज है। सिलेबस की इन किताबों को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। पेश कानपुर से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। तालीमी साल में तकरीबन 3 माह ही बाकी बचे हैं। बड़ी जद्दोजहद और मुतालबात के बाद उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में उर्दू की दरसी किताबें फराहम की गई हैं, लेकिन ये किताबें गलतियों से भरी पड़ी हैं। कुछ मालूमात आधी अधूरी हैं और कुछ गलतियां मज़हका खेज हैं। मसलन उर्दू के मारूफ अदीब प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का मजमून उर्दू जुबान की इब्तिदा शामिल किया गया है, लेकिन मजमून निगार की तस्वीर की जगह भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई है। इसी तरह मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीख वफात मुल्क की आजादी से पहले यानी 1946 बताई गई है। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश मुल्क की उन 5 रियासतों में से एक है जहां उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा हासिल है। सिर्फ ये कि लापरवाही और जब किताबें छप गई उसकी तस्हीह ना करने और जो तस्हीह करने वाले उनकी गैर जिम्मेदाराना रविश। किताबों की पूरी सीरीज के हर बाब में कोई न कोई गलती मौजूद है। एक किताब में अल्लामा इकबाल की मशहूर नज्म परिंदे की फरियाद शामिल की गई है, लेकिन नज्म में शायर का नाम ही गायब कर दिया गया है। इसी तरह मुश्किल अल्फाज के जो माने दिए गए हैं उनमें बहुत सारी गलतियां हैं। उर्दू वालों का मुतालबा है कि हुकूमत इन किताबों को न सिर्फ वापस ले बल्कि इसके जिम्मेदारों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाए और इसके लिए जिम्मेदारान को सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए और इन उर्दू किताबों को तुरंत हुकूमत उत्तर प्रदेश को वापस ले लेना चाहिए ताकि गलत तरीके से बच्चों की तालीम ना हो सके, क्योंकि अगर स्कूलों में ही तालीम गलत तरीके से दी जाएगी, तारीख पैदाइश या तारीख वफात या रहबरान के नाम कुछ फोटो अलग, तो उससे छोटे छोटे बच्चों और मासूम बच्चे और कच्चे जहन में उनकी तस्वीर गलत आ जाएगी और उसको फिर हम कभी भी उनका सुधार नहीं कर सकते। इसलिए मेरी तो हुकूमत उत्तर प्रदेश से गुजारिश ये है कि वो जल्द अज जल्द सारी किताबों को वापस ले और दोबारा इसको मुरत्तब करें और जो जिम्मेदार है उसको सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जिस जबान को बोलने वालों की अक्सरियत ने उनको वजीर आला की कुर्सी तक पहुंचाया और जिसमें एक कदावर वजीर आजम खान भी मौजूद हैं और मैं समझता हूँ तमाम ये शोबेजात उनके अंडर में हैं। उर्दू अकादमी है, फरोग उर्दू काउंसिल है, तमाम जो काम उनकी निगरानी में होते हैं और इस तरह की गलती नाकाबिल तलाफी है, नाकाबिल माफी है। जरा भी उर्दू वालों से मुहब्बान उर्दू से जरा भी एहसास है उनके ताल्लुक का तो उसे फौरन जो है डायरेक्टर्स को सस्पेंड करना चाहिए, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होना चाहिए। इन किताबों को देखकर लगता है कि महकमे ने जैसे तैसे करके उर्दू किताबों के मुतालबे से जान छुड़ाई है, लेकिन उर्दू टीचर्स के सामने अब ये मसला है कि इन किताबों का क्या करें। बच्चों को यही किताबें पढ़ाएं या फिर ये साल भी उर्दू की तालीम दिए बगैर ही खत्म कर दिया जाए। ETV न्यूज कानपुर। प्रिंसेस दुर्र-ए-शहबार ने पुराने शहर हैदराबाद की आवाम के लिए 1983 में एक फलाही अस्पताल की तामीर का आगाज करवाया था, जो सन 1989 से प्रिंसेस दुर्र-ए-शहबार चिल्ड्रंस एंड जनरल अस्पताल के नाम से काम कर रहा है। प्रिंसेस दुर्र-ए-शहबार ने इस अस्पताल को कायम करने के लिए अपने महर की रकम का अतिया दिया था। लगातार 25 साल से यह अस्पताल आवाम और खास तौर पर बच्चों के इलाज के लिए शोहरत रखता है। आज प्रिंसेस दुर्र-ए-शहबार की 100वीं सालगिरह के मौके पर अस्पताल के स्टाफ ने दुर्र-ए-शहबार को खराज-ए-क़िदत पेश किया। अस्पताल का लेड ऑन स्टोन 1983 में हुआ था और इसका इनागुरेशन 1989 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश NT रामाराव साहब भी आए थे और प्रिंसेस दुर्र-ए-शहबार भी आए थे, हर हाइनेस। और ये हॉस्पिटल को पूरा पैसा हर हाइनेस के जो महर की रकम थी उससे बनाया गया है। उनका ये एसेट जो महर का पैसा इतना काम में आ रहा है और वो वुमेन्स के भलाई और बहबूद के लिए और बच्चों की सेहत के लिए जो दूर अंदेशी से ये हॉस्पिटल खोला गया है। आज हमको अब समझ में आता है कि आज कारपोरेट लेवल कितने महंगे हो चुके हैं, मगर यहाँ पर 2 लाख बच्चे हर साल सेहतियाब होके जाते हैं। वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद।
देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 100 होनहार तलबा को सिविल सर्विसेज इम्तिहानात की मुफ्त कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में GO भी जारी हो चुका है। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर S.A. शकूर से ETV नुमाइंदा अनीसुर रहमान खान रूबरू हुए। पेश बातचीत के कुछ इक़्तिबासात। आंध्र प्रदेश ने रियासत के अक़लियतों के लिए फ्री सिविल सर्विसेज की कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के MD और वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर S.A. शकूर साहब। सर, हमें सबसे पहले ये बताएं कि ये जो सिविल सर्विस की कोचिंग का जो आपने ऐलान किया है वो किस किस्म का है, क्या क्या किया जाएगा इसमें? दरअसल हुकूमत आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी वेलफेयर के बजट के जरिए काफी गौर व खुश के बाद हुकूमत ने गुज़िश्ता साल स्पॉन्सर करने की एक स्कीम हम लोगों को दी गई थी, लेकिन अब हमारे स्पेशल सेक्रेटरी जनाब उमर जलील साहब आने के बाद हमारे मिनिस्टर साहब के ताउन से उसमें बहुत सारे मीटिंग्स हुए और उसके बाद एक नई स्कीम ये ऐलान किया गया है, GO जारी किया गया है कि 100 अक़लियतों के उम्मीदवार जो सिविल सर्विस करना चाह रहे हैं उनको एक प्राइवेट अच्छे से इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सर करना 100 मेंबर्स को, और उसका सारा जो है पेमेंट जो है CDM की जानिब से, हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। तो ये 100 बच्चों को कोचिंग प्लस उनके साथ स्टडी मटेरियल, वो इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट को रिपीटेड इंस्टीट्यूट होना चाहिए उसके हम टेंडर कॉल करेंगे, उस इंस्टीट्यूट के जरिए कोचिंग दी जाएगी। सारा का सारा पेमेंट हुकूमत की जानिब से किया जाएगा और जो है वो बच्चों को जो ट्रेनिंग है C-सेट की, यानी कि प्लिम्स जिसको कहा जाता था अब उसको C-सेट कहा जा रहा है, C-सेट की कोचिंग का इंतजाम किया जाएगा। इसके बाद अगर C-सेट में बच्चे हमारे क्वालिफाई होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला उनको मेन की कोचिंग का भी इसी तरीके से स्पॉन्सर करने का इंतजाम किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है अक़लियतों के लिए, क्योंकि इस स्कीम को निकालने से पहले हम लोगों ने बहुत से सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर और मिनिस्टर और हम लोगों ने बहुत गौर खोज किया इस स्कीम के बारे में, क्योंकि मुसलमानों की जो इस वक्त अक़लियतों के जो अहदेदार है सिविल सर्विस में, खास तौर पर IAS, IPS, IRS, IFS में ना के बराबर है, बहुत कम अहदेदार बाकी रह गए हैं।
तो इन पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में मुसलमानों को आना चाहिए, खासतौर पर अक़लियतों को आना चाहिए। उसी के लिए हुकूमत की जानिब से इस फ्री कोचिंग का इंतजाम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्कीम पहली मर्तबा न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि सारे हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि हुकूमत की जानिब से ये पहली स्कीम है और आंध्र प्रदेश में तो फर्स्ट टाइम ये स्कीम का जो है हम लोगों ने ऐलान किया है। उम्मीद कब है साहब, ये नोटिफिकेशन इसका कब तक आएगा? इस नोटिफिकेशन का अभी तो जीओ कल ही जारी हुआ है उसका, तो हम लोग इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो पेपर सेटिंग करवाना है, नोटिफिकेशन देना है। तो इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के बाद हम ये नोटिफिकेशन जारी करेंगे और अप्लाई करने के एक हफ्ता वक्त रखेंगे अप्लाई करने के लिए, जिसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद रिजल्ट दिया जाएगा, उसके फौरी बाद जो है स्पॉन्सर किया जाएगा। और एक बात भी ये है कि इन जो 100 कैंडिडेट थे उसमें ये बात पे भी गौर किया जा रहा है कि जो आउट ऑफ स्टेशन के कैंडिडेट हैं, जो अजला के कैंडिडेट हैं, उन लोगों के लिए एक 1500 रुपए का जो है स्टे फंड भी देने की हम लोगों ने ऐसी बात चल रही है। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। आखिर में मैं तमाम अक़लियती तलबा से जो बैचलर डिग्री रखते हैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि इस स्कीम से इस्तेफादा करें और ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम से फायदा उठाने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर एस.ए. शकूर जो मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट है आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के। ये हमें बता रहे थे कि किस तरह हुकूमत आंध्र प्रदेश अक़लियतों के लिए सर्विसेज की कोचिंग का एहतमाम करने जा रही है। मैं कैमरामैन नागेश्वर राव के साथ अनीसुर रहमान, ETV न्यूज हैदराबाद। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आलम, ठंडी हवाओं का मौसम इतना सुहाना कभी न था जैसा आज है। वजह कई सारी होंगी आपके पास, लेकिन हमारे पास सिर्फ
दो वजह है। एक ये कि आज हम पहली बार आपसे रूबरू हैं और दूसरी वजह ये जो कि मुश्तरक है, एक जैसी है, सामान्य है, वो ये है कि आज रिपब्लिक डे है, यौम जमहूरिया है, गणतंत्र दिवस है। सो हेलो, आदाब, नमस्कार, प्रणाम,